Yes, good afternoon, friends. And I'm Rajiv Ranjan on behalf of Udan IAS Academy and Udan Teachers Academy. Welcome you to our maiden venture for the TGT English Jharkhand class sessions. दोस्तों, it is said that the journey of 1,000 miles begins with a single step. And let us put our best foot forward. जहां तक मेरी बात है, मेरी पहचान सर्वज्ञात है. पीजीटी पिछले पीजीटी में मैंने एक रिकॉर्ड सिलेक्शन दिया था and I have the belief that I will be repeating the same rate of success with you in this course as well. Now we begin with discussing the syllabus of the TGT examination, TGT English. और जैसा कि हम लोग सिलेबस देखते हैं, the first part, development of English writing, Indian writing in English. दोस्तों, एक स्पेसिफिकली इन्होंने दिया है फ्रॉम 1830 टू प्रेजेंट डे. और जब इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की बात करते हैं तो फिर ये पोएट्री की भी बात करते हैं, नॉवल की भी बात करते हैं, शॉर्ट स्टोरी की भी बात करते हैं, नॉन फिक्शनल प्रोज की भी बात करते हैं, ड्रामा एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म की भी बात करते हैं, एंड टू द प्रेजेंट डे. राइट. सो फ्रेंड्स, 1830 ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, जरा ध्यान दीजिएगा. लगभग यही पीरियड है when Henry Vivian Louis Delezio, as the first nationalist poet of India, began writing his poetries in English. And today, of all the vast inspiring literature of Henry Vivian Louis Delezio, dedicated to the cause of the nation, at least दो gems तो हम लोग के पास हैं. To his peoples and to India, my native land. मेमोरेबल पोइट्री जिसका कि हम लोग विधिवत विश्लेषण करेंगे. गोइंग अहेड ऑफ द जनरेशन ऑफ लुई डेरेजियो, फ्रेंड्स, लेट मी पुट इट अक्रॉस टू यू दैट द फर्स्ट जेनर ऑफ English writing by Indians, rather Indians writing in the English language, was composed of Anglo-Indians. अभी मैंने हेनरी विवियन लुई डेरेजियो की बात की, इसके बाद माइकल मधुसूदन दत्त, इसके बाद टोरू दत्त. ये तमाम एंग्लो इंडियंस थे जो कि शुरुआती दौर में दे कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश पोइट्री. And for that matter, even English, other aspects of English prose. Right? Agla generation, and it was around the same time that Raja Ram Mohan Rai began writing in the English language. उन्होंने बहुत सी important किताबें लिखी हैं जो कि शुरुआती इंडियन राइटिंग्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करती हैं. Gifts of Monotheism, Precepts of Jesus, Brief Remarks regarding the Ancient Rites of Hindu Females, A Divine Worship of Gayatri. गिनते जाइए. Raja Ram Mohan Rai was one of the earliest Indian writers in the English language, और इनका भी हम लोग को संक्षिप्त विश्लेषण करना पड़ेगा.
Coming to journalism, this was the period when Raja Ram Mohan Rai came up with the first English journal, the Bangla Gazette. उन्होंने तो 3 पत्रिकाएं शुरू की थी, लेकिन संवाद कौमुदी बंगाली में था, मिराट उल अखबार फारसी में था, but the Bangla Gazette has the distinction of being the first English journal, or for that matter newspaper, though it was not published on a regular basis by any Indian. तो यहां से सिलसिला आगे बढ़ता है दोस्तों. फिर अराउंड द 1850s हम लोग आते हैं. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर मैंने जान के मेंशन नहीं किया. देखिए, द फर्स्ट इंडियन राइटिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद. द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद वाज अ ट्रेवलॉग written by an Indian, Deen Muhammad. He went on to reside for some time in England also. लेकिन चूंकि ये ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद 1790s में लिखा गया था, टू बी वेरी प्रिसाइज 1795, इसीलिए मैंने जान के मेंशन नहीं किया, क्योंकि पीरियड जो हम लोग को कवर करना है वो 1830 से कवर करना है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू बी वेरी वेरी साइंटिफिक, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट in the management of our time, and all that I teach हमारे ख्याल से आपके लिए लाभप्रद होना चाहिए. आगे दोस्तों, फिर by the fag end of 19th century there was a lot of writing by Indians in the English language. Mahatma Gandhi began to write his own memoirs himself, the story of my experiments with truth. Then Mahagovind Ranade, the first Indian to be appointed a judge of a high court, he wrote his own biography, rather autobiography, Religious Beliefs of an Atheist. तो तमाम ये लोग, दादा भाई नौरोजी, he wrote that brilliant book, Poverty and Un-British Rule in India. तो कहने का मतलब यह है कि धीरे 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 भारतीयों ने अंग्रेजी में लिखना प्रारंभ किया, and they cast an indelible imprint on the evolution of the English language and literature in India. दोस्तों, जैसे ही 20th century open होता है, we find that there is a fecund scope of English writing in India by the Indians. कुछ बहुत important इंग्लिश न्यूज़पेपर्स भी इंडिया में पब्लिश होने शुरू हो गए थे, एंड दे वेंट ऑन टू क्रिएट अ फोरम फॉर इंडियंस राइटिंग इन इंग्लिश. लोगों ने अखबारों में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया. फॉरमोस्ट अमंग देम वाज द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि 1838 में बेनेट कोल्डमैन ने शुरू किया था पब्लिकेशन मुंबई से, एंड इट इज एपोक्राफिकली निकनेम्ड एज द ओल्ड लेडी ऑफ बोरी बंदर. आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया को लोग ओल्ड लेडी ऑफ बोरी बंदर कहते हैं, क्योंकि बोरी बंदर बंबई से उसका 1838 में पब्लिकेशन शुरू हुआ. देन देयर वाज द सिविल एंड मिलिट्री गैजेट, द हिंदू वाज देयर, द ट्रिब्यून वाज देयर इन चंडीगढ़, लाहौर. आफ्टर दैट इट शिफ्टेड टू चंडीगढ़, एंड सो ऑन. तो ऐसे ऐसे करके एक सिलसिला शुरू हुआ, एंड देन वी कम टू द ट्रायो ऑफ द 3 इंडियन ग्रेट्स, जो कि फर्स्ट स्टार्टिंग डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी में उन्होंने एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू पैरामीटर इंडियन राइटिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज को दिया, एंड दे वर मुल्क राज आनंद, who wrote the magnum opus, The Untouchable, Sursatiya, The Coolie, etc. Then we have Rashipuram, Kumaraswamy Lakshman, R.K. Lakshman, Kumaraswamy Rashipuram Lakshman, K.R. Lakshman. He wrote that a series of brilliant books, Malgudi Days, The Vendor of Sweets, The Bachelor of Arts, etc. and etc. The list goes on. And the third of the trio was the inveterate Raja Rao. Raja Rao wrote that Kanthapura is still hailed as one of the most brilliant
English writings by an Indian. Kanthapura details out the Gandhian movement in the western regions of Karnataka, and it is still a lodestar in the evolution of English writing by Indians. Then Raja Rao wrote another brilliant novel on the Advaita philosophy, The Serpent and the Rope, an allegory to the Advaita philosophy of Shankaracharya. It's highly metaphysical and philosophical. इसको भी हम लोग को पढ़ना है कि कैसे इंडियन राइटिंग इवॉल्व की. Then as far as poetry is concerned, Harendranath Chattopadhyay is there, the brother of Sarojini Naidu. Then our Casuarina Tree by Toru Dutt. Porus, A Legend of Old by Michael Madhusudan Dutt. And then that Nightingale of India, Sarojini Naidu, who came up with brilliant tracts like Palanquin Bearers, Broken Wings, etc. and etc. At the time of independence, there was a sizable corpus of English writing by Indians, and they included the inveterate V.S. Naipaul, who had emigrated to the Trinidad and Tobago and Guyana regions, that is the Caribbeans, from India. But it stands out as a master among Indians who had taken to the English language just as a duck takes to water. आगे बढ़ते हैं तो that Bengali Bhadralok Nirasi Chaudhary, who even while residing in Oxford and attending the Oxford University and being appointed as the professor emeritus in Oxford, sported the dhoti and kurta as behoves a Bengali Bhadralok. Nirasi Chaudhary was distinctly unlucky not to get the Nobel Prize, but the corpus of English literature which he penned is marvelous. A Passage to England, Autobiography of an Unknown Indian, Scholar Extraordinary, Thy Hand Great Monarch. It is unequivocally proclaimed that Nirasi Chaudhary had the greatest mastery of prose and felicitation. The felicity of and the diction of language which he mastered was marvelous. तो एक थोड़ा हम लोग को इनके बारे में ही पढ़ना है. Then coming to contemporary writers, we have great people. Anita Desai is there. Her daughter Kiran Desai is there. Nayantara Sehgal, the daughter of Vijayalakshmi Pandit, is there. Aruna Dhati Roy, the god of small things, is there. Jhumpa Lahari is there. Vikram Ghosh, the only Indian to get the Gyanpith Award in the English language. The single Indian writer to get the Gyanpith Award in the English language, Vikram Ghosh, he is there. Vikram Seth is there. And a litany of other writers who have acclaimed themselves with honor and glory in writing in the English language. तो हम लोग को सबको पढ़ना है. देखिए, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है और मुझे सिलेबस बस डिटेल आउट करना है, तो बहुत ज़्यादा उसके गहराई में हम नहीं जा सकते और जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि डिटेल क्लासेस तो मैं लूँगा ही लूँगा इन चीज़ों के साथ. नहीं, जॉब प्लेटफॉर्म ये कोई बहाली आने वाली नहीं दिख रही है. ये बड़ा ही फैलेशियस स्टेटमेंट है. देखिए, कोलरिज ने कहा है कि when the occasion comes, the one who is best prepared for his calling has the highest chance of success. जब वक्त आता है तो जो सबसे अच्छा तैयार रहता है अपने कार्य के लिए, सफलता की सबसे ज़्यादा संभावना उसी की होती है.
तो दोस्तों ये कहना कि भविष्य में टीजीटी कोई बहाली नहीं आने वाली है तो मतलब हम लोग न पढ़ा जाए, ऐसा नहीं है। देखिए झारखंड में एक सिलसिला बन गया है कि बहाली आती है 2 महीना बाद वो एग्जाम्स ले लेते हैं। तो जब एग्जाम्स वो 2 महीना बाद ले लेते हैं तो फिर उस 2 महीने में आप क्या कर लेंगे? सफल आज के दिन वही होगा जो कि नियमित और निरंतर अपने लक्ष्य साधना में मशरूफ है, लगा हुआ है। तो हमारे ख्याल से ये डाइवर्जनरी टैक्टिसेस हैं। आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। अगर सफलता चाहिए तो भाई एकदम जुट जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्दी वैकेंसीज आने वाली हैं और अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो प्लीज डेडिकेट योरसेल्फ टू योर गोल एंड डोंट बी डिविएटेड फ्रॉम योर सैक्रोसैंक्ट पाथ। दोस्तों तो एक हमने सिनॉप्सिस आपको दे दिया कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अब उसके नीटी ग्रिटी में, उसके फाइनर एस्पेक्ट्स में तो हम लोग जब सिलेबस को कवर करना शुरू करेंगे तब जाएंगे। अब आइए ग्रामर पे। अग्रीमेंट ऑफ वर्ब एंड द सब्जेक्ट। देखिए ये अपने आप में एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड और बड़ा फील्ड है। इसमें अग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, तो कौन कौन से अग्रीमेंट्स होने चाहिए? अग्रीमेंट ऑफ नंबर, अग्रीमेंट ऑफ जेंडर, अग्रीमेंट ऑफ पर्सन, अग्रीमेंट ऑफ पोजेसिव्स, ये तमाम होना चाहिए। इसके लिए 15-20 तो ग्रामेटिकल रूल्स हैं। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, पूरे ग्रामर की किताब रटने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, बस 15-20 रूल्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। वो अप्लाइड रूल्स हैं और उनसे आप इस पूरे सेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। घुमा फिरा के इसी में वो पूछते हैं, वही 15-20 रूल्स हैं, है ना। तो और इसके लिए हमने कहा ना कि देखिए खाम खा ग्रामर रटने से कुछ नहीं होता है। ग्रामर याद करने का, ग्रामर को आत्मसात करने का एक बड़ा ही टेक्निकल स्वरूप होता है, क्योंकि ग्रामर अपने आप में निरर्थक है। जीके चेस्टरटन महान अंग्रेज लेखक जो कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, उन्होंने बड़ा साफ कहा है कि ग्रामर इज यूज्ड बाय द लिंग्विस्ट जस्ट एज अ ड्रंकर्ड यूजेस द लैम्प पोस्ट। ग्रामर इज यूज्ड बाय द लिंग्विस्ट just as a drunkard uses the lamp post not for illumination but for support। व्याकरण का भाषाविद के लिए वही प्रयोजन है जो कि एक शराबी के लिए बिजली का खंभा, प्रकाश के लिए नहीं, बस सहारे के लिए। तो फ्रेंड्स, उसमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यू हैव द मास्टर बिफोर यू, arguably acknowledged one of the best teachers of English literature and language in Jharkhand। मैं आपसे कह रहा हूं कि 18-20 रूल्स होते हैं उसके, वो मैं दूंगा, ये पार्ट मैनेज हो जाएगा। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ये फिर देखिए एक बड़ा ही डाइसी मतलब ये कह लीजिए उलझाने वाला पार्ट है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ये हम आपको बताएंगे। फिर नरेशन में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, उसके कुछ एस्टैब्लिश रूल्स होते हैं कि कैसे कैसे पूरे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाए। फिर एक्टिव एंड पैसिव का ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हम लोगों को करना है। फ्रेजेस, क्लॉजेस, और सिर्फ फ्रेजेस क्लॉजेस नहीं, फ्रेजेस, क्लॉजेस, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, क्लीशेस, सब हम लोग को करना है और इसको विधिवत हम लोग करेंगे। द यूज ऑफ मॉडिफायर्स, आप जानते ही हैं, मॉडिफायर्स अपने आप में एक छोटा टॉपिक है, लेकिन कैसे उनका एप्लीकेटिव डायमेंशन है, कैसे ये भाषा के संरचना को परिवर्तित कर देते हैं, इस पर भी हम लोग को डिटेल में बात करना है। प्रेपोजिशंस, वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेपोजिशंस दोस्तों देखिए बड़ी ही
विवादास्पद स्वरूप है ग्रामर का। देखिए प्रेपोजिशंस में एक हमको बहुत पढ़े लिखे आदमी कह रहे थे कि यार हर प्रेपोजिशन के लिए एक अलग रूल होता है, तो कितने रूल्स रटा जाएगा। आपको सब रूल नहीं रटना जाना है, कुछ ट्रेंड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जिनके द्वारा आप प्रेपोजिशंस को मास्टर कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ 20 से 25 रूल्स हैं जो कि आपको अप्लाइड फॉर्म में मैं दे के कराऊंगा और बताऊंगा कि कैसे प्रेपोजिशंस को मास्टर किया जा सकता है। ले दे के आपका मूल मकसद है एग्जामिनेशन में नंबर उठाना, क्वेश्चन को सही करना, है ना। तो खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें, हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें। मूल मतलब आपका है कि आप एग्जामिनेशन में सफल हो जाइए और अच्छी नौकरी पाइए। और उसके लिए 20 से 25 रूल्स में प्रेपोजिशंस पे आपको बताऊंगा, और उसको अगर आप आत्मसात कर लिए, और करना ही करना है क्योंकि हम लोग को रास्ता बताएंगे कैसे उसको आत्मसात करना है, कैसे सीखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव्स, जेरेंट्स, और एक चीज छूट गया है जो कि हम लोग को साथ करना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा, दैट इज पार्टिसिपल। और फिर एरर करेक्शन, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश यूसेज। दोस्तों विभिन्न तरीकों से हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्रामर को आदमी मास्टर कर सकता है। योर बेसिक एम is not to go about routinely wasting your time and energy. You have to dedicate your time and energy in a very purposeful, scientific, efficient, target-oriented strategy, so that in the least of effort you get the maximum of output and success. Right? Now friends, letters and applications of the following types. ठीक है, लेटर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। मैं खुद भी एक क्लास 1 ऑफिसर रहा हूं, और कैसे लिखा जाता है ऑफिशियल विथ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये तो मैंने खुद अपने नौकरी के दरमियान किया है ना। ये आपको मैं बताऊंगा जॉब एप्लीकेशन के लिए कैसे लिखना है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे लिखना है ना, ये सब बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंज्यूमर्स। हर देखिए टाइप ऑफ लेटर्स के अलग अलग वो होते हैं, प्रारूप होते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मेट अलग होता है, कंटेंट अलग होता है। तो उसको हम लोग मेमोरेंडम कैसे लिखा जाता है, मेमोस कैसे लिखा जाता है ना, तो ईमेल राइटिंग कैसे होता है, एडवर्टाइजमेंट एंड रिपोर्ट्स। राजन, और इसके बाद हमने कहा ना कि वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफिशियल, अनऑफिशियल एंड ऑल दोज लेटर्स, है ना। हम आपको लिखना बताएंगे। मैं खुद बताया हूं आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया है। आई हैव बीन अ क्लास 1 ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस एंड बैंकिंग ऑफिसर। तो हम लोग पे एक काम किए भी हैं, और ऐसे भी वो ना भी हो तो इसका एक अलग स्पेशल फॉर्मेट होता है, वर्ड सिलेक्शन कैसे हो, फॉर्मेटाइजेशन कैसे हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब मैं आपको बताऊंगा। एंड देन कॉम्प्रिहेंशन ऑन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोज पैसेज, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों comprehension is another very tough part of your syllabus, और इसको हम आपके को टेक्निक्स बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को क्विकली कॉम्प्रिहेंड करना है, उसके फाइनल लाइंस क्या हैं, बिटवीन द लाइंस कैसे उसको पढ़ना है,
और कैसे आप जाके प्रॉपरली डिसाइफर कर सकते हैं उस पैसेज को. There are very standardized techniques for that. Of course, a degree of foundational work, a degree of spade work, or a degree of groundwork is an implied, implicit component of it. लेकिन दोस्तों इसके अलावा टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को डिसाइफर करने, समझने में और रीड करने में. नाउ देन वी कम टू पार्ट 2 of the syllabus. And in part 2 of the syllabus, we begin with poetry. एक बात बताऊं दोस्तों कि ये जो नया सिलेबस आया है ये बहुत साइंटिफिक सिलेबस है और पहले से बेटर है. देखिए, विलियम शेक्सपियर, naturally he is the poet numero uno or the poet number 1 of English literature, the bard of heaven. लेकिन उनके सोनेट्स में ये जो चारों शुरुआती सोनेट है, दिस इज द फर्स्ट सोनेट, just a minute, just take a look. Now, फर्स्ट सोनेट, 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे. उसमें से 126 सोनेट्स को एक अलग हेडिंग में फेयर यूथ सीक्वेंस में क्लासिफाई किया गया. ये चारों के चारों सोनेट्स विलियम शेक्सपियर के फेयर यूथ सीक्वेंस के हैं. देन द सेकंड इज थर्ड सोनेट, the C1 is the 11th sonnet, and the D1 is the 12th sonnet. जैसा कि मैंने बताया, ये चारों सोनेट शेक्सपियर के फेयर यूथ सीक्वेंस से लिए गए हैं. शेक्सपियर के 154 सोनेट्स में फेयर फर्स्ट, थर्ड, 11th, and this is 12th. Fair youth sequence. ठीक, इससे लिए गए हैं. और चारों के चारों सोनेट्स, पहले तीन तो देखिए ये प्रोक्रिएशन पे डील करते हैं. बड़ा ही अजीब चीज है प्रोक्रिएशन से डील करते हैं कि कैसे मानव का मकसद या प्यार का मकसद सिर्फ भौतिक सुख, शारीरिक सुख नहीं होता है. जॉन कीट्स ने एक जगह बड़ा बढ़िया लिखा है, लव इज नॉट अ मेयर कॉम्युनिंग ऑफ पैशन, इट इज अ सॉर्ट ऑफ वननेस, अ फेलोशिप विथ एसेंस. तो वैसे ही शेक्सपियर कहता है कि प्यार का मूल मकसद सिर्फ भौतिक सुख, शारीरिक सुख, फिजिकल कंजुगल कम्युनियन नहीं होता है. इसका मतलब होता है संतान पैदा करना, प्रोक्रिएशन.
अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना। देखिए, मैं सनातनी बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन गरुड़ पुराण में एक बहुत बढ़िया श्लोक है जो कहता है कि जब तक तुम्हारा अपना जन्मा हुआ अपने उंगली से 2 अंगुल जल तर्पण नहीं देता है, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये फीलिंग हर जगह रहती है, और इस चौथे सोनेट का जो एसेंस है वो इनएविटेबिलिटी ऑफ टाइम है कि वक्त गुजरता रहेगा और कुछ भी सुंदरता स्थायी रहने वाली नहीं है। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो इनएविटेबिलिटी ऑफ टाइम, द इनएक्सॉरेबल मार्च ऑफ टाइम एंड द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द क्रिएशन। जो भी आया है वो क्षरित होगा, जो भी बना है वो क्षरित होगा। तो ये चीज इसमें कहता है, द इनएविटेबिलिटी ऑफ टाइम। एंड द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ क्रिएशन, राइट दोस्तों। नाउ वी कम टू जॉन डन। जॉन डन, he follows the age of Elizabeth, Queen Elizabeth, and he is a poet of the Enlightenment period. ठीक है, बेसिकली अ मेटाफिजिकल पोइट। उसी काल के कवि हैं ये, जबकि जॉन मिल्टन हुआ करते थे, ऑलमोस्ट कंटेम्पररी ऑफ जॉन मिल्टन, एंड बोथ वर रिमार्केबल फॉर देयर मेटाफिजिक्स, their philosophical insights, their allegorical verse, and above all the eulogization of Christian piety. तो जैसा कि जॉन मिल्टन अमर हो गए पैराडाइज लॉस्ट लिख के, और बहुत सी सैमसन एग्नोस्टिक्स हुआ, पैराडाइज लॉस्ट हुआ, पैराडाइज रिगेन्ड हुआ, है ना, मिल्टन की, वो सब के सब क्रिश्चियन थियोलॉजी पर लिखे गए थे। वैसे ही जॉन डन ने भी ये दोनों कविताएं क्रिश्चियन फेथ, क्रिश्चियन पाइटी, क्रिश्चियन थियोलॉजी पे ही लिखा है। जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में लिखते हैं कि ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट्स ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into this world and all our hosts with loss of Eden, till one greater man redeem us and restore to us that blissful seat. The second coming जो क्राइस्ट का है उसी पर बात करते हैं। वो वही लगभग थीम लेके जॉन डन यहाँ चलते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट की बात आती है तो जॉर्ज हर्बर्ट का पीरियड ऑगस्टन पीरियड माना जाता है। गोथिक, इसमें भी द पुली और वर्चू, इस पर वो बात करते हैं। फिर हम लोग को दैट हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ का ये 2 पोएम्स करना है, और दोनों ही दे आर ग्रेट पोएम्स। द सॉलिटरी रीपर, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, yon solitary highland lass, reaping and singing to herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. इसको हम लोग को डिटेल में करना है, इसका वेरियस अप्रिशिएटिव डायमेंशंस हम लोग करना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे वो नाना प्रकार के आ सकते हैं। देखिए, आपको पेपर 1 जो है वो तो क्वालिफाइंग नेचर का है,
100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज का होगा, 100 क्वेश्चन हिंदी का होगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। पेपर 2 जो है यही आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा। इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का। तो 150 क्वेश्चन का मतलब ये है कि लगभग वो सिलेबस को पूरी तरह खंगाल लेंगे। और अगर आप मास्टरी नहीं रखे हैं हर टॉपिक पे, हर इश्यू पे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो फ्रेंड्स, on 3 years she grew another autobiographical poem of William Wordsworth. 3 years she grew in sun and shower, then nature spoke, another flower in world was never seen. This girl I to myself will take, she shall be mine and I shall make a lady of my own. एक हसरत थी, लेकिन लूसी ग्रे फिर जिंदा नहीं रह पाई। और बड़ा ही दुख से वर्ड्सवर्थ कहता है, दे नेचर स्पेक, द वर्क वॉज डन, हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन। इतनी जल्दी उसका जीवन दौड़ समाप्त हो गया। तो बहुत ही पैथेटिक पोएम है, बहुत ही दर्द भरा पोएम है। इट्स द आउटलाइनिंग ऑफ अ पर्सनल इमोशनल लॉस। बहुत तरह की बातें कही गई हैं। कुछ लोग कहते हैं शेक्सपियर की वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहन पर लिखा है, कुछ लोग कहते हैं बगल वाली लड़की थी उस पर लिखा है। बातें हैं। तो जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो इसके वेरियस डायमेंशंस हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे। हाँ, नाउ देन फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं एंड वी कम टू जॉन कीट्स। अब देखिए, काबिले गौर ये बात है कि आमतौर पे रोमांटिक पोइट्स में हम लोग को वर्ड्सवर्थ भी है, कोलरिज भी है, बायरन भी है, शेली भी है और कीट्स भी है, लेकिन 2 ही पढ़ना है। वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है और जॉन कीट्स को पढ़ना है। तो दोस्तों, और कीट्स का भी जो उन्होंने दिया है, तो कीट्स रोट अ ग्रेट, अरे छठ हो तो ओड्स ही है उसके, लेकिन सिर्फ 2 ओड्स पढ़ना है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओड टू ऑटम, अ ग्रेट ओड, Thou hast the music too, है ना। ऑटम जीवन का वो दौर है जिसमें कि इंसान अपने पराभव के दौर से गुजरता है, उसके बाद विंटर आता है। तो एक प्रकार से कह लीजिए कि ऑटम व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापे को इंगित करता है। ही इज इन द ऑटम ऑफ हिज लाइफ। ये अंग्रेजी में मेटाफोरिकली कहा ही जाता है, ही इज इन द ऑटम ऑफ हिज लाइफ। और जब आदमी अपने जीवन के अंतिम दौर में पहुंच जाता है, आगे उसको बस नैराश्य ही दिखता है, तो फिर वो ऐसी कविता सृजित करता है। हालांकि किड्स तो बामुश्किल 24 साल की उम्र में मर गया था, 26 साल के, लेकिन एक प्रकार से ऑटम उसके जीवन का नैराश्य प्रकट करता है ना। तो लेकिन यह है कि इस दुख में भी वो कहता है, thou hast thy music too, तुम्हारा भी अपनी सुंदरता है, तुम्हारी भी अपनी संगीत है ना। बहादुर शाह जफर ने बड़ा ही मार्मिक कहा है, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजा में उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। तो दोस्तों, ऑटम स्टेज में जाके ये इल्म होने लगता है, ये एहसास होने लगता है कि अब दिन जिंदगी के ख़त्म हुए, शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे पूछे मज़ार में। हाँ, अब जीवन में कुछ खास बचा नहीं है। तो दैट सैडनेस, दैट मेलांकली इज देयर इन दिस पोएम। एंड देन ओड टू नाइटिंगेल, अनदर ग्राफिक पोएम ऑफ जॉन कीट्स, अ ग्रेट पोएम, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया लाइन्स हैं। Fade far away, behold and quite forget what thou amongst the leaves hast never known, the weariness, the fever and the fret, here where men sit and hear each other groan, where palsy shakes a few sad last grey hairs,
where youth grows pale and spectre thin and dies, where but to think is to be full of sorrow and leaden eyes despair, where beauty cannot keep her lustrous eyes, nor new love pine at them beyond tomorrow. तो दोस्तों, Ode to a Nightingale is another very, very important poem, a very graphic, symbolic poem of John Keats, और इसको भी हम लोग को पढ़ना है. एंड देन वी कम, देखिए यूं तो मॉडर्न लिटरेचर में, मॉडर्निस्टिक लिटरेचर में विलियम बटलर येट्स भी थे. तमाम ऐसे पोइम्स हैं, पोइट्स हैं जो कि दे हैव कास्ट गुड नेम. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज देयर ऑफ द विक्टोरियन एरा. मैथ्यू आर्नोल्ड वाज देयर. And then several other peoples were there, poets of eminence were there in the post-Victorian era or after 1850. लेकिन लिया सिर्फ एक नाम, that is T.S. Eliot, and T.S. Eliot deserves it to be mentioned in the syllabus. क्योंकि T.S. Eliot was a Nobel Prize laureate, a poem who sort of assimilated within himself all the physics, the philosophy, the dynamism, the chaos, the conundrum, the pessimism of modern world. हर्ष, विषाद, दुख, संताप, तमाम ये आधुनिक विश्व का, स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टी.एस. एलियट ने अपने कविताओं में संयोजित किया है. हाँ, द वेस्टलैंड इज देयर, है ना, हॉलो मैन इज देयर, तमाम वो पोएम्स हैं. दे आर एपिक पोएम्स. मर्डर इन द कैथेड्रल इज देयर, दैट ग्रेट बुक, सेमी ड्रामा, वो भी है. तो टी.एस. एलियट विल ऑल्सो मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. दोस्तों आगे बढ़ते हैं. एंड देन वी कम टू द नॉवेल्स. नॉवेल्स में देखिए, अगर हम लोग देखते हैं तो दो नॉवेल्स हम लोग को पढ़ना है. अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अनदर ग्रेट नॉवेलिस्ट. अब हमने कहा ना, मॉडर्न टाइम्स में तो देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ नॉवेल राइटिंग, लेकिन अर्नेस्ट हेमिंग्वे को इसलिए पढ़ना है क्योंकि आई पर्सनली फील that Ernest Hemingway is the most modernized and the most important symbol of his age. He made a clean departure with the past. No more verbosity of the Victorian novelists like D.H. Lawrence or for that matter George Eliot or Thomas Hardy or Charles Dickens. नहीं, जो भी लिखते हैं बहुत स्पष्ट लिखते हैं, डिलिनिएट करके लिखते हैं. एक लीनियर क्वालिटी है इनके नॉवेल्स में, एंड ही डिजर्व्स टू बी इन द सिलेबस. तो फॉर हुम द बेल स्टॉल, ये हम लोग को पढ़ना है. एंड देन द सेकंड नॉवेलिस्ट विच वी हैव टू स्टडी इज अरुणाधाती राय, आवर ओन गर्ल फ्रॉम केरला, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, whose very first novel got her the Booker Prize. Arundhati Roy is a harbinger of everything that is modernistic, that is rebellious, that is sort of change-worthy in the Indian life and way. And she stands as an icon of progressive thoughts and reformism among the youth of India. हालांकि अब उनको यूथ कहना तो बेकार होगा क्योंकि अब उनकी उम्र लगभग 50 की हो गई है ना, लेकिन शी डिजर्व्स मेंशन. इस नॉवेल को भी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवेल है, रिटन इन द बैकयार्ड्स ऑफ केरल, स्पेशली ऑफ अलेप्पी, और इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे. देन फ्रेंड्स, ड्रामा में आते हैं तो वही दो ड्रामेटिस्ट का हम लोग को स्टडी करना है. हैमलेट, which is decidedly the biggest drama of Shakespeare, and I suppose one of the most enacted drama worldwide of William Shakespeare. और इसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, an icon of satire, an icon of forceful writing, a representative of lampooning and ridiculing everything that is
not welcome in our present generation and our present civilization. तो उनका मैन एंड सुपरमैन भी हम लोग को पढ़ना है। बड़ी मज़ेदार आपको बात बता रहा हूँ बिफोर वी एंड अप फॉर द डे। सिलेबस डिस्कशन तो मैंने कर लिया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मानव इतिहास में अकेले व्यक्ति हैं जिनको कि नोबेल प्राइज भी मिला इंग्लिश लिटरेचर के लिए और ऑस्कर अवार्ड भी मिला पिग्मेलियन के स्क्रिप्ट के लिए। उनकी पिग्मेलियन हॉलीवुड मूवी में एनेक्ट हुई थी। इतिहास के अकेले व्यक्ति हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला और नोबेल प्राइज भी मिला। तो एक बार वो हॉलीवुड गया, ही वॉज अ ग्रेट मैन, अ वेरी सेलिब्रेटेड पर्सन। तो हॉलीवुड की सबसे सुंदर हीरोइन कैथरीन हेपबर्न से उनका सामना हुआ। कैथरीन हेपबर्न ने कहा कि डॉक्टर, यू आर सो ब्रिलियंट। यस मैम आई एम। एंड आई एम सो ब्यूटिफुल। यस मैम यू आर। तो कहे कि व्हाई डोंट वी मैरी, then our children will be as brilliant as you and as beautiful as me. तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि मैडम दैट्स फाइन, बट सपोजिंग दे टर्न आउट टू बी एज ब्रिलियंट एज यू एंड एज ब्यूटिफुल एज मी। और वो बहुत सुंदर नहीं थे, बदसूरत थे। तो सपोजिंग दे टर्न आउट टू बी एज ब्रिलियंट एज यू एंड एज ब्यूटिफुल एज मी, देन व्हाट। तो ऐसे थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। दैट सेंस ऑफ ह्यूमर, दैट सेंस ऑफ satire, that biting sarcasm in his literature was ever palpable, ever visible. तो दोस्तों आज हम यहीं आपको इंट्रोडक्शन दे दिए हैं सिलेबस का। अब आगे जो है क्लासेस में हम आपको वन बाय वन एक एक टॉपिक से ब्रीफ करेंगे। विद दिस आई थैंक यू फॉर द क्लास, माय बेस्ट ऑफ विशेस। देखिए अभी मैं लिखा दिख रहा हूँ कि टीजीटी की कोई बहाली आते हुए नहीं दिख रही है। यहाँ इस प्रदेश में बहुत कुछ दिखता नहीं है किंतु हो जाता है। और मैंने अभी आपको सैमुअल टेलर कॉलेज को कोट किया कि जब परिस्थिति आती है तो जो उस मौके के लिए सबसे अच्छी तरह तैयार रहता है उसी को सफलता मिलती है। When the occasion comes, he who is best prepared for his calling has the best chance of success. है ना? So let's end up for the day. Let me wish you all the best. In the words of John Fitzgerald Kennedy, the ex-president of the United States of America, that now the trumpet summons us again. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though embattled we are. अब जय भेरी बज चुकी है, युद्ध भेरी बज चुकी है। हाँ, और ईश्वर आपके हर अमल को मुकम्मल सफलता दें। I, Rajiv Ranjan, thank you for the class and all the best for your future endeavors. Thank you.